गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ ਤੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਔਰਬਿਟਸ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਨੇ? ਔਰਬਿਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਟਾਇਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन एट इनफिनिटी और एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन एट एनी शैल। जिस शैल दे विचों इलैक्ट्रॉन कढ़ना है उसकी एनर्जी तो इलैक्ट्रॉन लैके कित्थे जाना? आपां इनफिनिटी तक लैके जाना है। इनफिनिटी तक क्यों लैके जाने? ताकि न्यूक्लीअस ते इलैक्ट्रॉन के विचकार की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो की हो जाए? जीरो हो जाए। अगर आप एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम इनफिनिटी तो एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द nth शैल अगर वो आप की कर दी सबट्रैक्ट कर दिए तो अपने को की आ जाऊगी? आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाऊगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट शैल की एनर्जी है, ये अपने को nth शैल की एनर्जी है। आप एनर्जी का रिलेशन पढ़िया सी, आपां नूं पता है जो एनर्जी होंगी किसी भी शैल दे विच वो किस दी इक्वल होंगी है? माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल पर एटम या माइनस ऑफ 13.6 इलैक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, थोड़े जिहा नाल इहदे आपां लिखिया सीगा Z² अपॉन N²। Z की इंडीकेट कर रहा अपने को? Z इंडीकेट कर रहा है एटॉमिक नंबर
ਤੇ n ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ। ਅਗਰ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ -13.6 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ -1312 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਇੰਟੂ ਸੇਮ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਸ਼ੈਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਸ਼ੈਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0 એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ E1। E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? -13.6 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ? 13.6 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਹਰ ਮੋਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਆਇਨਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1। ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫॉर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੀਲੀਅਮ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ? ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ? E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ E1 ਮਤਲਬ 0 ਮਾਈਨਸ ਆਫ 13.6 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ। ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਇੰਟੂ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ। ਮਤਲਬ 4 ਟਾਈਮਸ ਦਾ એનર્ਜੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ? ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ n ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ।
ठीक है, आंसर अपना किस दे विच सीगा, माइनस दे विच। की एनर्जी माइनस दे विच हो सकती है कि किसी भी बॉडी की एनर्जी, किसी भी सबसटांस की एनर्जी माइनस दे विच हो सकती है, तो एनर्जी तो माइनस दे विच नहीं हो सकती। तो इस माइनस का की मतलब है, तो उरे माइनस साइन का की मतलब है, ये माइनस साइन तो मैथेमैटिक वाला माइनस नहीं है, इसका मतलब कि आप वो समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इलैक्ट्रॉन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट इज लेस दैन एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, इज लेस दैन एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन एट इनफिनिटी। एट इनफिनिटी का मतलब की है, जो इलैक्ट्रॉन फ्री है, जो इलैक्ट्रॉन की है फ्री है, न्यूक्लियस तो दूर है, वो वधिया घूम फिर सकता है। तो आप उस टाइम पर गल कर रहे हैं जो इलैक्ट्रॉन फ्री है, न्यूक्लियस तो इलैक्ट्रॉन के विचकार कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हैगी। आप इसमें थोड़ा सिंपल वे दे नाल समझते हैं, आप इसमें थोड़ा सिंपल वे नाल समझते हैं। देखो आ सेंटर दे विच न्यूक्लियस है, आ अपना फस्ट शैल है, आ सैकेंड है, आ थर्ड है, आ अपने कोल की है फोर्थ शैल है, 1 2 3 4। जो फस्ट शैल की एनर्जी की होंगी है, लो होंगी है एज कंपेयर टू सैकेंड। ठीक है, सैकेंड शैल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, फस्ट शैल, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इलैक्ट्रॉन मैं फोर्थ शैल तो फस्ट शैल ते लैके आना है, अगर मैं इलैक्ट्रॉन हाईयर एनर्जी लैवल तो लोअर एनर्जी लैवल ते लैके आना है, तो ओबवियस है एनर्जी की होगी, रिलीज़ होगी। जो मैं इलैक्ट्रॉन को हाईयर एनर्जी लैवल तो लोअर एनर्जी लैवल ते लैके जाऊँगा तो एनर्जी की होगी, रिलीज़। तो माइनस साइन की इंडीकेट कर रहे हैं, माइनस साइन इंडीकेट कर रहे हैं कि जो भी आप इनफिनिटी तो, जो भी आप इनफिनिटी तो अंदर वाल नूं आने आ, लोअर शैल्स वाल नूं आने आ, तो एनर्जी की होंगी, रिलीज़ होंगी है, तो एनर्जी की होगी, रिलीज़ होगी। तो माइनस साइन की इंडीकेट कर रहे हैं कि जिमें जिमें डाउन जाई जावांगे उवें उवें एनर्जी की है वध रिलीज़ होगी। इसका मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वो सब तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रही है, जो ग्राउंड स्टेट है वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ करती है उन्हें। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की है, बहुत घट है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की है, बहुत घट है। कैमिस्ट्री के जिसकी एनर्जी सब तो घट है वो सब तो ज़्यादा स्टेबल होगी, तो ग्राउंड स्टेट सब तो ज़्यादा स्टेबल होंगी है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब जो बाहर वाली स्टेट्स ने, तो उरे माइनस साइन की इंडीकेट करता है, एनर्जी रिलीज़ नूं इंडीकेट कर रहे हैं, तो होर की इंडीकेट कर रहे हो कि जो एनर्जी है इलैक्ट्रॉन की एटम के विच वो घट है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन। फ्री इलैक्ट्रॉन का मतलब की है जो इलैक्ट्रॉन कितने है, एट इनफिनिटी, जो इलैक्ट्रॉन कितने है एट इनफिनिटी। ठीक है, अगर मैं दो लैवल के विचकार एनर्जी घटनी हो, सपोज करो मेरा इलैक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 ते है, तो इलैक्ट्रॉन जंप करके एन इज इक्वल टू 3 ते जाना चाहता है, तो इलैक्ट्रॉन नूं की अबजॉर्ब करनी पऊगी, हुण लोअर टू हाईयर जाना है, तो इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी की करनी पऊगी, एबजॉर्ब करनी पऊगी। इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी की करनी पऊगी, एबजॉर्ब। तो इलैक्ट्रॉन नूं कितनी एनर्जी अबजॉर्ब करनी पऊगी, वो डिपेंड करता है इन्हां दोनों के विचकार दे, इन्हां दोनों एनर्जी लैवल के एनर्जी डिफरेंस से। मतलब डेल्टा ई किस दे इक्वल होगा, एनर्जी लैवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी लैवल ऑफ ग्राउंड स्टेट। अगर आप जनरल फॉर्म दे विच डेरीवेशन करिए, जनरल फॉर्मूला ड्राइव करिए, तो देखो की आऊगा, आपां नूं पता है जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की N1 की कितनी होगी, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्केयर ओवर N1 स्केयर इन द टर्म्स ऑफ इलैक्ट्रोवोल्ट पर एटम। एक्साइटेड स्टेट की कितनी होगी, हाईयर लैवल मतलब N2, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट, N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो ये एनर्जी अपने को कितनी होगी, माइनस 13.6 इंटू जेड स्केयर ओवर N2 का स्केयर। याद रखियो N2 लैवल वड्डा है एज कंपेयर टू N1 लैवल। तो इलैक्ट्रॉन ने जंप करके कितने जाना है, लोअर एनर्जी लैवल तो हाईयर एनर्जी लैवल पर जाना है, तो इलैक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी अबजॉर्ब करनी पऊगी, वो किस इक्वल होगी, उन्होंने दोनों के एनर्जी डिफरेंस से। तो आंसर कितना आ गया देखो, अगर मैं EN2 दे विचों
EN1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਾਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। -13.6 इंटू जेड स्केयर की ले लिया मैं कॉमन बाहर ले लिया, तो उरे की बच गया अपने को 1/n2 का स्केयर -1/n1 का स्केयर। कई बार उरे n1 या n2 भी लिखे हो सकता है तो उरे माइनस साइन नहीं होना, अगर उरे n1 तो उरे n2 लिखा होगा तो उत्थे माइनस साइन नहीं होना। उरे सिंपली हाईयर लैवल की एक्साइटेड लैवल की एनर्जी की वैल्यू पुट करो तो ग्राउंड लैवल की एनर्जी की वैल्यू पुट करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਅਰ ਤੋਂ ਲੋਅਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਇਮਿਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। अगर आप कैलकुलेट करनी होन किन्नी स्पैक्ट्रल लाइन्स बाहर निकलणगियां किन्नियां लाइन्स इमिट होणगियां तो उसका फॉर्मूला हुंदा है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन की है हाईयर लैवल माइनस लोअर लैवल, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है हाईयर लैवल माइनस लोअर लैवल। आप एग्जाम्पल के नाल समझते हैं फिर तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। देखो कोई इलैक्ट्रॉन है वो उसका हाईयर लैवल की है, कोई इलैक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट 7 तो ग्राउंड स्टेट 1 दे विच आ गया तो किन्नी नंबर ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स निकलणगियां, तो नंबर ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स किन्नियां होणगियां, उसका फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन की चीज़ है n2 माइनस n1, हाईयर लैवल की वैल्यू कितनी है, हाईयर शैल किहड़ा अपने कोल 7, ग्राउंड कितना है फस्ट, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, डेल्टा एन की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 6 आ गई, तो 6 इंटू 6 प्लस 1/2 तो आंसर कितना आ गया 21 लाइन्स। आप इस तरीके के नाल नंबर ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण देखो इस दे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल की है कहना फाइंड द एनर्जी एसोसीएटेड विद फस्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपको एनर्जी दी हुई है फस्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की, आप की फाइंड आउट करनी है फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपको एनर्जी गिवन है, आप फाइंड किस ऑर्बिट की करनी है फिफ्थ ऑर्बिट की, आपको फॉर्मूला पता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ जाउल पर एटम कितना होंदा है, आप और लिखा सी -2.18। तो न्यूमेरिकल दे विच थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। अपन फॉर्मूला पता है एनर्जी इज इक्वल टू -2.17 इंटू 10⁻⁻18 जाउल पर एटम ओवर n स्केयर, ठीक है, इंटू जेड स्केयर सी, जेड में पुट करता 1 क्योंकि अपने कोल की है हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हुण इन्हें एनर्जी पूछी है फिफ्थ ऑर्बिट की, फिफ्थ ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 5, फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब है n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप 5, तो n स्केयर कितना आ जाऊगा 25, n स्केयर की वैल्यू पुट कर दो 25, तुहाडे कोले एनर्जी आ जाऊगी फिफ्थ ऑर्बिट की, तुहाडे कोल एनर्जी आ जाऊगी इसकी फिफ्थ ऑर्बिट की। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले दे विच सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तुसीं। नैक्सट है रेडियस फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट आऊगा उरे, आप रेडियस फाइंड आउट करना है किसका फिफ्थ ऑर्बिट का। फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस किवें कड्डांगे, अपन जनरल फॉर्मूला पता रेडियस कड्डण दा, रेडियस इज इक्वल टू A0 इंटू n स्केयर बाय जेड। अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो जेड नूं आप हटाता,
इन्हें पूछे कि ऑर्बिट का आपां नूं 5th ऑर्बिट का, मतलब एन की वैल्यू पुट करांगे 5, तो आंसर कितना आ गया 25 इंटू ए नोट। ए नोट की वैल्यू कितनी होंगी है, ए नोट है बोहर रेडियस, इसकी वैल्यू होंगी 0.529 एमस्ट्रोंग। 1 एमस्ट्रोंग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस तरीके नाल आपां एनर्जी फाइंड आउट कर सकते, रेडियस भी। हुण वेलोसिटी तुसीं खुद फाइंड आउट करनी है, जो वेलोसिटी है वो तुसीं खुद फाइंड आउट करनी है। आंसर मैनू WhatsApp कर सकते हो, जो पढ़ने वाले बच्चे वो कर दियो, जो नहीं पढ़ने वाले ना करियो। इस तो बाद देखो मॉडर्न कंसैप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का की है। हुण देखो जो लाइट है ना, जो अपने को लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, वेव की तरह आपां दस्सिया सीगा कि लाइट वेव की तरह क्यों बिहेव करती है। ये थ्योरी दी सी मैक्सवैल ने। मैक्सवैल की इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी सी, जो अपने सिलेबस चो इस बारी कटती। ठीक है, जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसकी थ्योरी आपां दी सी प्लैंक्स ने। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी भी हुण अपने सिलेबस दे विच नहीं हैगी, तो तुसीं याद रखियो लाइट वेव की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल की तरह भी की करती है, बिहेव करती है। हुण देखो वेव हुंदी की है, पहले आपां वेव नूं समझदे हां। थोड़ा जिहा थ्योरी तुहानूं समझा देना पिछली। वेव की हुंदी है, वेव है डिस्टरबेंस। वेव की हुंदी है डिस्टरबेंस, जिहड़ी ओरिजिनेट हुंदी है किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स तो। वेव की डिस्टरबेंस है जो ओरिजिनेट हुंदी है कित्थों, किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स तो। इसदी बेस्ट एग्जाम्पल है बचपन दे विच तुसीं की कीता होगा, कोई नदी दे विच या कित्थे भी तुसीं जिथे पानी ज़्यादा होगा तो तुसीं उत्थे स्टोन सिੱਟ के देखिया होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्टोन सिੱਟਿਆ होगा तो देखिया होना ਉੱਥੋਂ वाइब्रेशनस ਹੁੰਦੀਆਂ। वाइब्रेशन मतलब तो वेव्स निकलती हैं जो बिल्कुल बॉटम लैवल वाल आ रही होंगी। ठीक है, वेव्स तो सबनों पता है, वेव किस फॉर्म च ट्रैवल करती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। वेव इस तरीके नाल की करती है, फ्लो करती है। जो अपर पार्ट हुंदा है वेव का, जो अपर पार्ट हुंदा है वेव का, उसनूं आपां की बोलते हैं, लोअर पार्ट नूं आपां की बोलते हैं। जो अपर पार्ट है अपने कोले, अपर पार्ट नूं बोलते हैं क्रस्ट, तो नीचे वाले पार्ट नूं बोलते हैं आपां ट्रफ। जो वेव का उपर वाला पार्ट है उसनूं की बोलते हैं क्रस्ट, तो नीचे वाले पार्ट नूं की बोलते हैं आपां ट्रफ बोलते हैं। याद रखियो, उपर वाला पार्ट क्रस्ट है, नीचे वाला पार्ट की हुंदा वेव का, ट्रफ हुंदा है। वेव हुंदी की है डिस्टरबेंस, जो कित्थों ओरिजिनेट हुंदी है, किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स तो। वेव एक डिस्टरबेंस है, कित्थों ओरिजिनेट हुंदी है, किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स तो। देखो वेव ने उरों चलना स्टार्ट किया, वेव ने उरों चलना स्टार्ट किया तो उरे पहुंच गई। तो देखो इस तो बाद वेव रिपीट हो रही है, इस तो बाद वेव की हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप इस चीज़ नूं की बोलते हैं, आप इसनूं बोलते हैं वन साइकिल। इस चीज़ नूं आपां की बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं आपां। ठीक है, इस चीज़ नूं आपां की बोलते हैं, वन साइकिल। एक सैकेंड दे विच वेव किन्ने साइकल्स कवर कर सकती है, एक सैकेंड दे विच वेव किन्ने साइकिल कवर कर सकती है, उसनूं आपां की बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सैकेंड दे विच वेव किन्ने साइकल्स कवर कर सकती है, उसनूं आपां की बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की हुंदी है द नंबर ऑफ साइकल्स पर सैकेंड। फ्रीक्वेंसी की चीज़ अपने कोले द नंबर ऑफ साइकल्स पर सैकेंड। फ्रीक्वेंसी नूं रिप्रजेंट करते हैं आपां न्यू दे नाल, फ्रीक्वेंसी नूं रिप्रजेंट करते हैं आपां न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूनिट्स की होंगे हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी यूनिट्स की होंगे हर्ट्स होंगे, याद रखियो। ठीक है, नंबर ऑफ साइकल्स पर सैकेंड। हर्ट्स की होंगे अपने कोले 1/सेकेंड। हर्ट किस दी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी दी। सैकेंड किस दी यूनिट है, टाइम पीरियड दी। तो एक रिलेशन है टाइम पीरियड ते फ्रीक्वेंसी दे विचकार। आ रिलेशन है टाइम पीरियड ते फ्रीक्वेंसी दे विचकार। इस तो बाद देखो होर डिटेल दे विच समझदे आपां। हुण द डिस्टेंस बिटवीन, आ अपने कोल की है क्रस्ट है, आ भी अपने कोल की है क्रस्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, जो डिस्टेंस दो क्रस्ट दे विचकार है
उसनूं आपां की बोलते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट उसनूं आपां की बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ नूं रिप्रजेंट करते हैं आपां, वेवलेंथ नूं रिप्रजेंट करते हैं आपां लैम्डा दे नाल। वेवलेंथ नूं रिप्रजेंट करते हैं आपां लैम्डा दे नाल। ठीक है, वेवलेंथ रिप्रजेंट करना है लैम्डा दे नाल। लैम्डा दी वैल्यू की हुंदी है, लैम्डा दी वैल्यू की हुंदी है, लैम्डा दी वैल्यू हुंदी है अपने कोले सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू। सी की अपने कोले वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी की चीज़ अपने कोले वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तुहानूं पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सैकेंड। न्यू की है फ्रीकैंसी, फ्रीकैंसी तुहानूं पता है नंबर ऑफ साइकल्स पर सैकेंड। हुण तुहानूं वेवलेंथ पता लग गया। वेवलेंथ की हुंदी है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। वेवलेंथ की है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, जिहड़ा आ डिस्टेंस है ये भी की है वेवलेंथ है, जिहड़ा आ डिस्टेंस है ये भी की है अपने कोले वेवलेंथ। ठीक है, हुण तुहानूं समझ आ गया कि फ्रीकैंसी की हुंदी है, वेवलेंथ की हुंदी। हुण नैक्सट समझते हैं आपां वेलोसिटी। वेलोसिटी की हुंदी है, ये तुहानूं मैं की करवा रहा है, ये तुहानूं वेव की कुछ करैक्टरिस्टिक्स दस रहे हैं, वेव के बारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपां। ठीक है, आपां की डिस्कस कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ये अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਤਾ, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी ब्रोगली इक्वेशन समझने ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਮਝ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਟਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ वेवलेंथ की होंगी है लैम्डा, आप समझ लिया फ्रीकैंसी की होंगी है न्यू। आप 4 चीज़ें समझ लिया। हुण आप समझते हैं वेलोसिटी। हुण वेलोसिटी की होंगी है, तो एक वेव ने, किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सैकेंड दे विच। किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सैकेंड दे विच, उसनूं आपां की बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस यूनिट की होंगे मीटर, तो वेलोसिटी यूनिट की आ गया मीटर पर सैकेंड। 1 सैकेंड दे विच किसी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसनूं आपां की बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। हुण देखो जो वेव अप डाउन मूव कर रही सी, वेव की मूव कर रही सी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो मैक्सिमम हाइट है चाहे क्रस्ट की होवे चाहे ट्रफ की होवे, उसनूं आपां की बोलते हैं एंपलीट्यूड, उसनूं आपां की बोलते हैं एंपलीट्यूड। ठीक है, किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी या किसी भी लाइट की इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है एंपलीट्यूड दे। किस ते डिपेंड करती है, एंपलीट्यूड दे। एंपलीट्यूड का स्केयर होंदा, जिन्ना एंपलीट्यूड ज़्यादा होगा, जिन्ना एंपलीट्यूड ज़्यादा होगा उन्नी इंटेंसिटी की होगी, ज़्यादा होगी। जिन्ना एंपलीट्यूड ज़्यादा होगा उन्नी इंटेंसिटी की होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट है वेव नंबर, लास्ट की चीज़ है वेव नंबर। हुण वेव नंबर की हुंदा है, वेव नंबर को रिप्रजेंट करते हैं आपां न्यू बार दे नाल। वेव नंबर को रिप्रजेंट करते हैं आपां न्यू बार दे नाल। हुण वेव नंबर की हुंदा है, आपां नूं वेवलेंथ समझ आ गई। हुण वेवलेंथ ही आपां पता करना वेव नंबर। वेव नंबर की होंदा है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। वेव नंबर की होंदा है, इट इज़ अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर। वेव नंबर रिप्रजेंट करते न्यू बार दे नाल। एक किस दी इक्वल होंदा 1 अपॉन लैम्डा दे, एक किस दी इक्वल होंदा 1 अपॉन लैम्डा दे इक्वल होंदा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू तुहानूं पता है, लैम्डा किस दी इक्वल होंदा है, लैम्डा इक्वल होंदा है सी अपॉन न्यू दे। लैम्डा किस दी इक्वल है, सी अपॉन न्यू दे। ठीक है, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करदा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करदा तो अपने को उरे की आ जाऊगा सी अपॉन न्यू। ठीक है, अगर मैं एक ही आ गया अपने को रिलेशन आ गया फ्रीकैंसी ते वेव नंबर के विचकार।
ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਮਝ ਲਈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਰਸਟ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਟਰਫ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਮੈਟਰ ਵੀ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ।